Okay, so let's start our class. So in our last class, we have already discussed about the two types of addresses of computers in a computer network. One is MAC address, that is known as also known as physical address. Another is IP address, which is also known as logical address. Okay, physical address जो है that is MAC address that is not going to change for a computer throughout its lifetime, and IP address जब भी कोई device internet से connect होता है they will get an unique identity number that's called IP address. Okay. So up to that we have already covered in our last class. Today we'll start from here, that is protocol. Okay. So um, protocol is nothing but it is a standard set of rules. Okay, a standard set of rules that allow electronic devices. So electronic devices can be your computer, also mobiles, also any other device, to communicate with each other. Okay, suppose one device and another device, how they will communicate among each other. कैसे वो कनेक्ट होगा, फिर कैसे वो डाटा पास करेगा, दैट इज द that that will be defined by some set of rules, and that rule will be called as a protocol. Understood now? Protocol is nothing but some set of rules how to communicate. Okay, am I clear? Yes, ma'am. Okay, so these rules specially include first question. Some questions has been listed here that will be answered by this rule. Is that first question that will be answered by protocol is that what type of data may be transmitted. So two devices है, उन दोनों के बीच तो डाटा ही ट्रांसमिट होगा ना, यहाँ से यहाँ जो भी होगा वो डाटा ट्रांसमिशन होगा. तो किस टाइप का डाटा वो ट्रांसमिट कर सकता है, that will be answered by this protocol. Next is what commands are used to send and receive. ओके, सेंड करने के लिए क्या कमांड होगा, रिसीव करने के लिए क्या कमांड होगा, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोटोकॉल. एंड लास्ट थिंग इज हाउ डाटा ट्रांसफर आर कंफर्म. सपोज दिस डिवाइस हैज सेंड सम डाटा टू दिस डिवाइस, तो यहाँ पे आके ये रिसीव हुआ या नहीं, उसको ये कंफर्मेशन यहाँ पे मिलना चाहिए ना. दिस इज माई डिवाइस ए एंड दिस इज माई डिवाइस बी. सो ए ने कुछ भी अगर भेजा बी को, तो बी के पास रिसीव हुआ या मिड वे में वो लॉस हो गया या कुछ भी हुआ, सो ए को वो कंफर्मेशन भी मिल सकता है कि वहाँ पे रिसीव हुआ या नहीं. दैट कंफर्मेशन ऑल्सो गिवन बाय द प्रोटोकॉल. Okay, so these are the basic three questions that will be answered by the protocol that is used for a communication. Okay, so protocol is nothing but some set of rules which are used to identify the communication. इसमें कैसा डाटा जाएगा, कैसे कमांड होगा, कैसे वो कंफर्मेशन मिलेगा. Okay, now there are many protocols are there in our computer networking. So most commonly used are some of the most commonly used protocols are listed here with a small description of this one. In your later semester, when you will get to when you will get to learn about computer networks, that time you will learn about in all of the protocols in more detail. But in this semester, just little bit about this protocol. Okay. First protocol that we are going to discuss is that file transfer protocol, that is FTP. So it is a standard network protocol used for the transfer of computer files between a client and server on a computer network. Okay. So this protocol is basically deals with the files. अभी फाइल्स क्या होता है हम लोग का कंप्यूटर में फाइल हम लोग किसको बोलते हैं? कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? एनीवन? फाइल हम लोग किसको बोलते हैं? हेलो, am I audible? Anyone is there? Yes, ma'am. I'm getting no response. Shall I stop the connection?
to store data or yes, record data or store some data. If I am getting no response, then I must assume that I am not audible and I have to disconnect. Tarifa, Yes, ma'am. hello? Hello, ma'am. Yes. Yes, Am I audible? yes, ma'am. So no one is responding. Even if you don't know, you have to respond, na? Not a single person is responding. Dulal is saying you have to store datas. Anyone else? Dalvin, Dulal will respond. Dalvin, Devashish, Vishal. Any response? See, I am taking a live session. I am not making a recording only. Okay, so I need a little bit interaction. Even if you don't know, then also I need the interaction. If you don't know that, that answer is at least I can expect, na? Yes, ma'am. Devashish, that will assure your or sorry, that will assure that your data will be delivered to be successful, and that's why it is called reliable protocol also. ओके, दिस इज अबाउट टीसीपी. बट यूडीपी में केस में क्या होता है, यूडीपी को सपोज यहाँ पे ए है और सपोज किसी एक सेंडर है यहाँ पे बी, उसको वो डाटा सेंड करना है. तो वो डाटा क्या करता है, डायरेक्टली वो डाटा सेंड कर देता है. बिफोर एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन, वो डायरेक्टली डाटा, सपोज वो डाटा उसका सिंपली हाई वो मैसेज एक सेंड कर रहा है, तो वो सिंपली हाई जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देगा. अभी वो ये मैसेज कनेक्शन ढूंढते ढूंढते जाएगा. सपोज वो सक्सेसफुली बी में पहुंच भी सकता है या फिर नहीं भी पहुंच सकता, किसी और जगह में जाके वो डाटा लॉस भी हो सकता है. ओके, सो मतलब वो कनेक्शन ढूंढते ढूंढते वो मैसेज भी पास होता जाएगा उसी कनेक्शन के साथ. अगर कनेक्शन मिला उसको तो वो मैसेज डिलीवर्ड हो जाएगा, कनेक्शन नहीं मिला तो वो मैसेज पास ही नहीं होगा. बट ए उसी टाइम पे मैसेज पास कर देता है. बट इस केस में टीसीपी में क्या होता है, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश कंप्लीट होगा, उसके बाद ही वो मैसेज भेजता है. दोनों का डिफरेंस समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that's why UDP is also called connectionless, और इसको अनरिलायबल भी बोलते हैं. अनरिलायबल है क्योंकि उसमें एश्योरेंस नहीं मिलता है कि जो हमेशा जाएगा नहीं जाएगा. बट दिस इज इन दिस केस ऑल्सो मैसेज डिलीवर होता है, ऐसा नहीं कि एवरी टाइम नहीं होता है, बट पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है. इन केस ऑफ टीसीपी हम 100% सक्सेसफुल रेट होता है, तो यूडीपी में 100% सक्सेस रेट नहीं होता है. ओके, सो मैसेज डिलीवरी का सक्सेस रेट हमेशा नहीं होता है. कनेक्शन अगर एस्टेब्लिश हो तभी वो मैसेज जाएगा, लेकिन यूडीपी के केस में मैसेज चला जाएगा डिलीवर्ड हो या ना हो. दैट इज द टू बेसिक 2 points अबाउट दिस टू प्रोटोकॉल. नाउ एनीवन कैन टेल मी, फोन कॉल क्या होगा, यूडीपी होगा या टीसीपी होगा, एंड एसएमएस, सॉरी, TCP. भी होगा Phone call मैम. is TCP, ma'am. फोन TCP. कॉल इज टीसीपी एंड एसएमएस विल बी UDP. UDP. एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, ma'am. Differ No, in ma'am. this? No, ma'am. No, ma'am. ओके, सो यू आर राइट ओनली. बिकॉज हम लोग जब फ़ोन कॉल करते हैं, सपोज मुझे यहाँ से कॉल करना है किसी को, वहाँ पे जब कॉल एस्टेब्लिश होगा, उस पर्सन ने जब कॉल को रिसीव किया, हम दोनों के बीच में वो कॉल एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद ही मुझे जो इन्फॉर्मेशन देना होगा उसके बाद ही मैं बोलूँगी ना. अगर नेटवर्क कंजेशन रहा या वो नंबर बिजी है या कुछ भी रीज़न से वो फ़ोन स्विच ऑफ है, मुझे वो नहीं मिला, तो वो एस्टेब्लिश होने से पहले मैं अपना बात को इन्फॉर्मेशन पास करना स्टार्ट नहीं करती हूँ ना. जब भी वो फोन कॉल एस्टेब्लिश्ड होगा, आफ्टर दैट ओनली आई विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग माय इंफॉर्मेशन. दैट इज द केस विथ टीसीपी, एंड दैट इज द गुड एग्जांपल इज फोन कॉल. बट एसएमएस के केस में क्या होता है, हम लोगों को जहाँ पे भी एसएमएस करना होता है, हम लोग सिंपली उसको भेज देते हैं
अभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ होने से तो उसको नहीं मिलेगा, या फिर उसका नेटवर्क नहीं होने से उसको नहीं मिलेगा। जब उसका नेटवर्क आएगा उसको मिल सकता है, या फिर स्विच ऑन करने से फिर मिल सकता है। बट मुझे जो डाटा भेज रहा था मैंने भेज दिया, मैंने पहले एश्योर नहीं किया, उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करूँ उसके बाद एसएमएस भेजने के लिए वेट नहीं किया। सो दैट्स व्हाई इट इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ यूडीपी। क्लियर ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so basic 2 points of TCP and UDP is this only: connectionless and connection oriented. One is reliable, another is less reliable. Okay. Next is it is TCP is specially designed to provide a reliable end-to-end. End-to-end मतलब sender और receiver के बीच में कंप्लीट रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस बीच में तो और भी बहुत सारा कंप्यूटर्स रहेगा ना, बट दिस इज वन एंड जहाँ से मेरा स्टार्ट होगा मैसेज पास, एंड दिस इज द अनदर एंड रिसीवर जहाँ मेरा एंड हो कंप्लीट होगा, डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। सो इन दोनों के बीच में कंप्लीट रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड इट प्रोवाइड्स रिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा। ऑब्वियसली कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद जो भी डाटा भेजोगे वो रिलायबली पहुंचेगा, डिलीवर्ड होगा। Next is it provides acknowledgements and retransmission for reliable delivery. Acknowledge में भी मिलता है एंड retransmission for reliable delivery. सपोज यहाँ से तुमने जो भी मैसेज भेजा वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें एक्नोलेज भी मिल सकता है उसका। ओके, एक्नोलेजमेंट मतलब वहाँ पहुँच गया। हम लोग जो फ़ोन कॉल में बात करते हैं, सपोज मैंने कुछ एक बोला, तुम लोगों को किसी को फ़ोन करके मैंने कुछ एक बोला, तुम जब उसका आंसर मुझे दोगे, रिप्लाई करोगे, तभी मुझे उसका एक्नोलेजमेंट मिल जाएगा ना कि तुमने मेरा बात सुना। अंडरस्टूड माई पॉइंट? जब भी मुझे उसका रिप्लाई मिल जाएगा आई विल अंडरस्टैंड ओके दैट हैज़ बीन एक्नोलेज कि मेरा मैसेज तुम्हें मिला। ओके, अगर नहीं मिला तब भी मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हें वो मेरा बात सुनाई नहीं दिया, मैं फिर से उसको रिपीट कर सकती हूँ। दैट्स दिस रिट्रांसमिशन। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. अगर मैसेज Yes, मिल ma'am. जाता है तो हम लोग को एक्नोलेजमेंट मिलता है, अगर मैसेज नहीं मिलता है उसका भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि एक्नोलेजमेंट नहीं मिला ना, देन वी कैन इन दैट सिचुएशन वी कैन रीट्रांसमिट आल्सो। ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिलायबल। ओके, next is last point, it is saying that it provides an essential service of making sure that each piece of data is transferred in the correct sequence and without any error. So suppose मैंने तुम्हें कुछ एक इंफॉर्मेशन बोला कि हाई वी विल हैव ए क्लास टुमारो, ओके, तो उसी सेम सीक्वेंस में वो मैसेज जाएगा। बट एसएमएस में कभी क्या होता है, सबसे पहले सपोज मैंने हाई बोला, हाई बोल के एक एसएमएस दे दिया, ये जनरली व्हाट्सएप में भी कभी कभार होता है, नेटवर्क इशू में होगा, बट एसएमएस में बेसिकली ज़्यादा होता है। सपोज हाई बोल के एक मैसेज दे, उसके बाद आफ्टर सम आवर आधा घंटा बाद सपोज तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ है या नेटवर्क नहीं है, उसके आधा घंटा बाद मैंने और एक मैसेज दिया सपोज, ठीक। तो कभी कभार नेटवर्क इशू में क्या होता है, जब रिसीवर साइड में जाके ये वाला मैसेज पहले दिखाई देता है, ये वाला मैसेज बाद में आ जाता है, वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं आता है। मैंने जिस सीक्वेंस में भेजा था तो रिसीवर साइड में जाके उस सीक्वेंस में प्रॉपरली नहीं आता है, ठीक है। बट टीसीपी में क्या होगा, फ़ोन कॉल में जब तुम बात करोगे पहला वाला बात ही पहले जाएगा, नेक्स्ट बात उसके बाद ही जाएगा, दैट इज और इट इज गोइंग करेक्ट सीक्वेंस में जाएगा, और कोई भी बिना एरर का जाएगा। ओके ना? आई गेस टीसीपी इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so next is UDP. So about UDP, we have already learned that it is a connectionless, unreliable, and it is used to send short messages called datagram। हम लोग स्मॉल मैसेजेस को भेजने के लिए जनरली हम लोग टीसीपी यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे लेस रिलायबल है ना, तो वो छोटा मैसेज अगर नहीं भी गया तुम फिर से उसको भेज दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट मैसेजेस, जैसे हम लोग एसएमएस में बोला ना, हम लोग जनरली शॉर्ट मैसेजेस के लिए यूज़ करते हैं, एंड उसको डाटाग्राम बोलते हैं। इट्स एन ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर टीसीपी। टीसीपी का और एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, एंड इट प्रोवाइड्स वेरी लिमिटेड एरर चेकिंग ऑपरेशन। मतलब एरर चेकिंग करने के लिए बहुत कम ऑप्शन रहता है हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोगों ने तो एक बार भेज दिया, मिला नहीं मिला उसके बारे में हम लोग लिस्ट बॉदर होते हैं इन केस ऑफ यूडीपी। एंड लास्ट वन इज सेइंग दैट यूडीपी इज more suitable for broadcasting and multicasting application. Broadcasting is nothing but from one to all.
ओके, फ्रॉम वन टू ऑल, एंड मल्टीकास्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को। तो इसका मैं अगर एग्जांपल दूँ, सपोज ये बिहू गया हम लोग का, उसके कुछ दिन पहले न्यू ईयर गया। सपोज मैंने मोबाइल लिया, मुझे ये मैंने एक न्यू ईयर विश या बिहू विश का एक मैसेज लिखा, तो मुझे उसको मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, मेरे मोबाइल का जो भी जितना भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, सपोज 200 या 100 जितना भी मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट है, सबको अगर मैं वो मैसेज एक साथ अगर फॉरवर्ड कर दूँ, उस टाइम पे वो क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग। ओके, बट सपोज मैं पर्टिकुलर एक ग्रुप को, सपोज मेरे अपने स्टूडेंट ग्रुप के लिए मैंने एक अलग सा मैसेज लिखा, मैं अपना पर्सनल फ्रेंड्स जो है उनके लिए अलग सा मैसेज, रिलेटिव्स के लिए अलग सा मैसेज। ओके, उस टाइम पे मेरा क्या होगा, वो मैसेज मल्टीकास्टिंग होगा। स्टूडेंट ग्रुप के लिए एक मैसेज होगा, उस ग्रुप में 10 लोग भी हो सकते हैं, 15 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं। उस ग्रुप को मैंने एक मैसेज दिया, दूसरा और एक ग्रुप को और एक मैसेज दिया, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को जब हम लोग एक पर्टिकुलर मैसेज उस ग्रुप में सबको भेज देते हैं, उसको मल्टीकास्टिंग बोलते हैं। Am I clear? Broadcasting and multicasting. Yes, ma'am. So please note down these two topic. आप लोग नेक्स्ट क्लास में उसका डेफिनेशन मुझे बोलना, जस्ट 1 लाइन और 2 लाइन डेफिनेशन विल बी एनफ। आप लोग ढूंढ के मुझे नेक्स्ट क्लास में बोलोगे इन दोनों का डेफिनेशन। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस टू टर्म ओनली। मिलेगा ना नेक्स्ट क्लास में मुझे? Okay, ma'am. हाँ मैम। Yes, ma'am. सो बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि यूडीपी इज मोर सूटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। सो ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग का जो मैंने एग्जांपल दिया, हैप्पी बिहू या फिर हैप्पी न्यू ईयर, सो वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं कि सपोज किसी का फ़ोन स्विच ऑफ है, उसको नहीं मिला, या फिर किसी का नंबर चेंज हो गया, नेटवर्क नहीं है, उसको नहीं मिला, तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इशू नहीं होगा, दैट विल बी अनफ। बट सपोज मुझे अगर तुम लोगों को स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कुछ अर्जेंट, मतलब सपोज एग्जाम का डेट चेंज हुआ या ऐसा कुछ हुआ, प्रीपोन पोस्टपोन ऐसा कुछ, that is an essential information, I have to make sure that everyone will get। तो उस टाइम पे हम लोग को we can go for any reliable connection की we can verify कि सबको वो information मिला या नहीं मिला। ठीक है, UDP and TCP both are clear ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so few more protocols Yes, are ma'am. there, we will discuss in our next class. So now let me just note down the attendance.